Now, the next phylum is phylum Echinodermata. Member of the phylum Echinodermata, they are having spiny skin and also endoskeleton of calcareous ossicle. Endoskeleton of calcareous ossicle and spines in skin. Hence the name Echinodermata. Echino means spiny, derma skin, so spiny skinned animal called Echinodermata. Here you can see spines are present. Now, body wall. This body wall consists of spines. स्पाइंस प्रेजेंट हैं इनके बॉडी वॉल में किस तरह से? हियर स्पाइंस, few spines and this is dermal branchi for respiration, and here this structure is pedicellariae. Now, how they are present in body wall? So this is the outer layer which is known as cuticle. This outer layer is what? Cuticle, and then there is epidermis. There is epidermis. So this is epidermis. Epidermis is cellular. So this is epidermis. Epidermis. And below the epidermis there is dermis. So here this is the body wall. In the body wall, the outer layer is what? Cuticle, and below the cuticle there is epidermis and then dermis. Here these structure are dermal spine. So you can see dermal spine. Why they are called dermal? Because they develop in dermis. वो डर्मिस में डेवलप हुए और कहाँ? बाहर तक आ रहे हैं. सो डर्मल स्पाइन, इनकी वजह से ही इनकी स्किन जो होती है वो स्पाइनी रहती है. नेक्स्ट, दिस स्ट्रक्चर इज डर्मल branchi. Dermal branchi. This structure is what? Dermal branchi. The function of this dermal branchi is respiration. फंक्शन क्या होगा इसका? Respiration. And one more structure is pedicellariae. Pedicellariae ज्यादा है तो pedicellariae. So pedicellariae, and then in dermis there are calcareous ossicles. You have heard the name this calcareous ossicle or dermal ossicle. So this structure dermal ossicle.
dermal ossicles present in dermis. These dermal ossicle they form endoskeleton. This endoskeleton is made up of calcium carbonate. So these ossicles are calcareous, made up of calcium carbonate. ये किसके बने होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के. And their origin is mesodermal. Origin is what? Mesodermal. Now दोबारा देखते हैं एक बार फिर से सारे पॉइंट्स. वेरी फर्स्ट, दिस इज द बॉडी वॉल. द आउटर कवरिंग इज क्यूटिकल and just below the cuticle there is epidermis, and below the epidermis there is dermis. In the dermis there are dermal ossicles. Dermal ossicles form endoskeleton. हमारे में भी एंडोस्केलेटन है. किसका बना हुआ है? बोन्स का बना हुआ है. यहां पर एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है? इन डर्मल ऑसिकल्स का. Dermal ossicles are calcareous, means made up of calcium carbonate, and the origin of these dermal ossicle is mesodermal. तो यहां पर जो एंडोस्केलेटन है उसकी ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल. हमारे में जो एंडोस्केलेटन है उसकी ओरिजिन क्या होगी? एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल या एंडोडर्मल? आंसर होगा मेसोडर्मल. क्यों? बोन्स, कार्टिलेजेस, ये सब कैसे होते हैं? मेसोडर्मल इन ओरिजिन. तो इंपॉर्टेंट बात ये आ गई कि हमारे एंडोस्केलेटन की ओरिजिन मेसोडर्मल, इनके एंडोस्केलेटन की ओरिजिन मेसोडर्मल. तो ओरिजिन वाइज अगर देखा जाए तो दोनों की ही ओरिजिन कैसी हो गई? मेसोडर्मल. बट बी रिमेंबर स्ट्रक्चर अलग अलग है. हमारे में बोन्स हैं, उनमें ये डर्मल ऑसिकल्स हैं, प्लेट्स हैं. तो ये पॉइंट अलग हो गया, ओरिजिन सिमिलर है. नेक्स्ट, डर्मल स्पाइन्स आर प्रेजेंट. डर्मल स्पाइन्स प्रेजेंट है. डर्मल स्पाइन्स. एंड फॉर रेस्पिरेशन डर्मल ब्रैंकाई फॉर गैसियस एक्सचेंज. एंड पेडिसिलेरिया. पेडिसिलेरिया, इट इज pincer like structure. It help in cleaning of skin. कैसे? ये जो स्टारफिश हैं, इकाइनोडर्म्स हैं, ये कहां पर होंगे? बॉटम पर होंगे. बॉटम में डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. तो क्या हुआ कि ये बॉटम पर प्रेजेंट है, इनके बॉडी के ऊपर पार्टिकल्स का डिपोजिशन होने लगा. अगर ये पार्टिकल डिपॉजिट होते जाएंगे तो देखिए यहां पर क्या होगा? ये जो डर्मल ब्रैंकाई है दे में क्लोज, ये बंद हो जाएंगे. तो किसमें प्रॉब्लम आ जाएगी? रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी. ऐसा ना हो. सो टू क्लीन द स्किन, ये जो पेडिसिलेरिया है वो क्या करते रहते हैं कि जैसे ही पार्टिकल्स ऊपर गिरते हैं तो ये इसको कट करते रहते हैं. In this way, they help in cleaning of skin. So, function of pedicellariae is to clean skin. All echinoderms are marine. They found in marine water, sea. Exclusively marine. Only in marine water. Generally live at bottom. बॉटम पर प्रेजेंट होते हैं. एंड दे आर स्लो मूविंग एनिमल्स. देखिए यहां पर ये कहां पर प्रेजेंट है? बॉटम पर प्रेजेंट है. एंड दे आर स्लो मूविंग एनिमल्स. बॉडी शेप की बात करें, स्टार लाइक, मे बी स्टार लाइक, सिलिंड्रिकल,
melon like, disc like or flower like, but there is no distinct head. So head absent in echinoderms. देखिए स्टार लाइक है, सिलिंड्रिकल बॉडी है, ग्लोब्यूलर सी अर्चिन एंड फ्लावर लाइक सी लिली. So there are so many different body shape. Symmetry. Symmetry बहुत इंपॉर्टेंट है फाइलम इकाइनोडर्मिटा में. फाइलम इकाइनोडर्मिटा में सिमेट्री इज रेडियल इन एडल्ट्स. इकाइनोडर्मिटा में जो सिमेट्री होती है वो कौन सी होगी? रेडियल. रेडियल सिमेट्री मीन्स एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू two parts by any plane passing through the central axis. This symmetry is what? Radial symmetry. And bilateral symmetry is found in larva. तो लार्वा में कौन सी सिमेट्री हो जाएगी? लार्वा में सिमेट्री हो जाएगी बाइलेटरल. तो सिमेट्री जो होती है वो कौन सी हो गई? रेडियल एंड बाइलेटरल दोनों ही टाइप की. ये पॉइंट आपको एनसीईआरटी में आप देख पाओगे कि ये पॉइंट होगा पेज नंबर 54 पर. आप देखोगे तो 4th लाइन यहां मिलेगा और यही पॉइंट आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में भी देखा था. वहां पर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 49 पर, है ना. टेबल बनी हुई है, उसके नीचे पॉइंट लिखा हुआ है कि इकाइनोडर्म एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ सिमेट्री, रेडियल एंड बाइलेटरल डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेज. तो एनसीईआरटी में ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में भी पॉइंट है और एनसीईआरटी में ये कहां पर है? यहां हम जो इकाइनोडर्मिटा पढ़ रहे हैं पेज नंबर कौन सा? 54 पर. मॉड्यूल में देखोगे तो पेज नंबर 27 यहां पर आपको मिल जाएगा पॉइंट नंबर 5 सिमेट्री का. नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल. ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स हैं, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है. ट्रिप्लोब्लास्टिक वही एक्टोडर्म एंड देन एंडोडर्म एंड देन मेसोडर्म. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होगा ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक. सीलोम. सीलोम इज व्हाट? ट्रू सीलोम. ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है. ट्रू सीलोम क्या होती है? वही बॉडी वॉल एंड गट के बीच का स्पेस, द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट and the space is lined up by mesoderm. That is true coelom. Water vascular system और ambulacral system. जो water vascular system या ambulacral system है, it is distinctive feature of phylum Echinodermata. ये पॉइंट आपको मिल जाएगा 9th लाइन एनसीईआरटी में, पेज नंबर 54 और 9th लाइन. अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और नाम भी है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये कहां मिलता है? आप याद कीजिए स्पॉन्जिस में. आप देखोगे पेज नंबर 49 पर 5 और 6 लाइन, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम. सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कराया जाएगा. कभी वाटर ट्रांसपोर्ट दे दिया है ना, कभी वाटर वैस्कुलर दे दिया. अब आपको याद रखना है कि वाटर वैस्कुलर अगर आया है तो कहां होगा? वाटर वैस्कुलर इकाइनोडर्मिटा. और वाटर ट्रांसपोर्ट अगर आ गया तो वाटर ट्रांसपोर्ट किसके लिए? पोरिफेरा स्पॉन्जिस के लिए. व्हाट इज द फंक्शन देन? दिस सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इट हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर and transport of food and also respiration. देखते हैं कैसे. ये स्टारफिश है. स्टारफिश में ये उसकी आर्म्स हैं और इन आर्म में ही हमें दिख रहा है इस सिस्टम का कुछ पार्ट. हम पूरा सिस्टम देखते हैं. यहां हमने क्या किया कि अब ये पूरे सिस्टम को जब डिटेल में देखते हैं, then this water vascular system consists of opening,
So this opening is known as मैट्रीपोराइट। मैट्रीपोराइट से वाटर जो होता है वो एंटर करता है, वाटर एंटर थ्रू मैट्रीपोराइट। एंड देन मैट्रीपोराइट के आगे प्रेजेंट है देयर इज स्टोन कैनाल। दिस इज हार्ड कैलकेरियस रिंग प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई कॉल्ड स्टोन कैनाल। एंड स्टोन कैनाल के आगे देयर इज रिंग कैनाल। क्या प्रेजेंट है? ये रिंग कैनाल। रिंग कैनाल से हर आर्म में एक निकलती है क्या? रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल। सो हियर रेडियल कैनाल। तो नंबर ऑफ रेडियल कैनाल्स 5। क्यों? हर आर्म में एक रेडियल कैनाल प्रेजेंट है। रेडियल कैनाल से निकलते हैं, रेडियल कैनाल से निकलते हैं स्ट्रक्चर नॉन एज ट्यूब फीट। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे ट्यूब फुट, बहुत ज्यादा है ट्यूब फीट। सो रेडियल कैनाल से ही क्या लगे हुए हैं? ये बहुत सारे ट्यूब फीट। ये क्या है? ये है ट्यूब फीट। ये सब क्या लगे हुए हैं? ये सब लगे हुए हैं ट्यूब फीट। ट्यूब फीट जो है उसका भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें जो ऊपर का ये स्वोलन पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट, दिस वन। इसमें देखें दिस वन, दिस इज नोन एज एम्पुला। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं, दिस इज नोन एज एम्पुला। नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं? यहां पर प्रेजेंट होता है सकर। ये क्या है? ये है सकर्स। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? एम्पुला। एक बार फिर से आप नाम देख लीजिए। सबसे पहले वेरी फर्स्ट मैट्रीपोराइट, वाटर एंटर किया मैट्रीपोराइट से, एंड देन स्टोन कैनाल, एंड देन रिंग कैनाल, और रिंग कैनाल से कहां? रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल में फिर क्या जुड़े हुए हैं? ट्यूब फुट। ट्यूब फुट जुड़े हुए हैं। ट्यूब फुट में ये लास्ट में क्या है? सकर, और सकर से होते हुए आउट। दिस इज द पैसेज। ये जो सकर्स होते हैं, सकर्स हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। किसी सरफेस पर हमको चलना है तो क्या किया कि अपनी आर्म को बाहर रख दिया, है ना, और फिर सकर्स जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, उसकी हेल्प से ये क्या करते हैं? लोकोमोशन। तो एक फंक्शन क्या हो गया? लोकोमोशन। ऐसे ही अगर हमको अपना फूड कैप्चर करना है तो इन्होंने क्या किया कि अपनी आर्म को उस फूड पर रख दिया, उसके नीचे क्या लगे हुए हैं? ट्यूब फीट के सकर, वो चिपक गई और फिर उसको मोड़कर कहां? अपने माउथ में डाल दिया। तो इस तरह से किसमें हेल्प करते हैं? कैप्चर एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ये जो ट्यूब फीट हैं दे आर वैस्कुलर, थिन, ये पतले होते हैं, वैस्कुलर होते हैं। इसलिए जब वाटर यहां से अंदर यहां से आया मैट्रीपोराइट से, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, तो यहां वाटर प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? ट्यूब फुट में प्रेजेंट है। उस वाटर से ऑक्सीजन ले ली गई, वाटर से ऑक्सीजन ले ली गई, और जो बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड थी, बॉडी की जो कार्बन डाइऑक्साइड थी जिसमें ये वाटर बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। फिर सुनिए कि जो वाटर आ रहा है, वाटर आ रहा है यहां पर रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से बोलो किसमें आया? इस ट्यूब फुट में आया, ट्यूब फुट में आया। अब उस वाटर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन डिफ्यूज कहां हो गई? बॉडी में। और जो बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कहां छोड़ दी? वो यहां छोड़ दी और यहां से होते हुए आउट। तो इट हेल्प इन रेस्पिरेशन। इसने किसमें हेल्प किया हुआ है? रेस्पिरेशन में। तो ट्यूब फीट जो होते हैं वो किसमें और हेल्प कर रहे हैं? रेस्पिरेशन में, लोकोमोशन में, कैप्चर ऑफ फूड में। बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम था किसका? फाइलम इकाइनोडर्मेटा का वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, एम्बुलैक्रल सिस्टम
आपको जरूर याद रखना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या क्या है। फंक्शन आपको याद रखना चाहिए, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट टाइप। क्या मीनिंग होती है? माउथ इज प्रेजेंट, एनस इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट इनकम्प्लीट इन ब्रिटल स्टार, साइंटिफिक नेम ऑफ्यूरा। वहां पर कैसा होता है ये? वहां होता है इनकम्प्लीट टाइप का। अदरवाइज फाइलम इकाइनोड्रोमेटा में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा होगा? इट इज कंप्लीट टाइप। माउथ इज प्रेजेंट, एनस इज प्रेजेंट, सो इट इज व्हाट? कंप्लीट टाइप। माउथ जो होता है वो कहां पर प्रेजेंट है? अपर साइड पर या लोअर साइड पर? देख लो, माउथ जो है वो प्रेजेंट है माउथ ऑन लोअर साइड। माउथ कहां पर प्रेजेंट है? लोअर साइड। ये एनिमल को क्या किया हुआ है? पलट दिया गया है ना। माउथ कैसे कहां प्रेजेंट है? माउथ ऑन लोअर साइड, वेंट्रल साइड। और एनस कहां पर होगी? डोर्सल साइड पर। कैसे? सपोज देखिए आप, ये मान लीजिए कि स्टारफिश है। स्टारफिश इस तरह से चल रही है सरफेस पर, ऐसे चल रही है, तो इसमें माउथ कौन सी साइड पर प्रेजेंट होगा? माउथ यहां प्रेजेंट होगा, लोअर साइड और वेंट्रल साइड। लोअर साइड पर या वेंट्रल साइड पर, तो ये वाली साइड कौन सी हो गई? डोर्सल साइड। माउथ यहां और एनस कहां? यहां। सो माउथ ऑन वेंट्रल साइड, एनस ऑन डोर्सल साइड। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। ओपन टाइप तो है, लेकिन यहां सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज नॉट सो डेवलप्ड because no heart or pumping vessel. Circulatory system is not so developed, heart is absent. Very important point, excretory system absent. ये बहुत पूछा जाता है। excretory system absent होता है, फिर excretion कैसे हो पाएगा? excretion जो होगा by diffusion through general body surface। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है लाइक अमोनिया डिफ्यूज आउट थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, वो डिफ्यूज आउट हो जाएंगे, बट देयर इज नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम इट इज ऑल्सो सिंपल, लेस डेवलप्ड। सेंसरी ऑर्गन लेस डेवलप्ड, बिकॉज जरूरत भी नहीं है उनको। सेंसरी ऑर्गन की इतनी जरूरत भी नहीं है। वाई? क्योंकि वो कहां रहते हैं? डीप सी में। डीप सी में रहते हैं, तो डीप सी में इन्वायरमेंटल कंडीशन दे आर लेस फ्लक्चुएटिंग, ज्यादा चेंज होता नहीं है। दैट्स वाई सेंस ऑर्गन्स आर नॉट सो डेवलप्ड। हियर दिस इज नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व्स प्रेजेंट इन ईच आर्म. So this is what? This is nerve ring and radial nerves. Sexual reproduction is there. Sexual reproduction होता है. Animals जो होते हैं they are unisexual, dioecious. You can say sexes are separate. Fertilization is external and development is indirect. Indirect means there is a larval stage. Free swimming larva, for example, by Pinnaria. By Pinnaria larva लाइफ साइकिल में प्रेजेंट है. इकाइनोडर्म्स में अगर आप देखो, हेड इज एब्सेंट, हार्ट इज एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, इतनी ज्यादा चीजें इनमें एब्सेंट हैं. उसके बाद भी ये इतने ज्यादा एडवांस हैं, इतने ज्यादा एडवांस हैं. किस पॉइंट ऑफ व्यू से इतने एडवांस है ये? तो ये एडवांस इसलिए है बिकॉज ड्यूट्रोस्टोमस कंडीशन है एंड एंटीरोसीलोमिक कंडीशन है. ड्यूट्रोस्टोमस टर्म आपका सुना हुआ है, आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू एनस फर्स्ट, माउथ फॉर्म लेटर.
ये क्या था? ड्यूट्रोस्टोमस कंडीशन। तो ड्यूट्रोस्टोमस कंडीशन किन किन में मिलती है, कौन कौन से फाइलम में प्रेजेंट है? ड्यूट्रोस्टोमस कंडीशन इज फाउंड इन इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा। तो ये फीचर कॉर्डेटा में है और ये फीचर इकाइनोडर्म्स में भी मिल रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या कर रहे हैं? ये रिजेंबल कर रहे हैं। एक और पॉइंट आया एंटीरोसीलोमिक कंडीशन। एंटीरोसीलोमिक कंडीशन, सीलोम, सीलोम का जो ट्रू सीलोम है, ट्रू सीलोम टू टाइप की, ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चन सॉल्व करते समय। उस समय ये क्वेश्चन में नाम आया था, इसलिए मैंने बताया था ट्रू सीलोम दो तरह से डेवलप होती है। एक तो होती है बाय स्प्लिटिंग इन मेसोडर्म, उसे क्या बोलते हैं? साइजो सीलोम। ट्रू सीलोम may develop into two ways. One is if true coelom develop by splitting in mesoderm, then it is known as cytocoelom. Other one is anterocoelom. Anterocoelom. This type of coelom develop by the fusion of gut pouches. ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो एंटीरोसीलोम कौन कौन से फाइलम में प्रेजेंट है? आप याद कीजिए, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये एंटीरोसीलोम जो है वो किस किस में है? इकाइनोडर्मेटा एंड देन हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये फीचर भी किससे रिजेंबल कर रहा है? ये फीचर भी रिजेंबल कर रहा है किससे? कॉर्डेटा से। That's why echinoderms resemble with chordates in early embryonic development due to having deuterostomous and enterocolic condition. Autotomy. Auto means self. Tomy stand for detachment. ये जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, अगर कभी इनकी कोई आर्म किसी जगह फंस जाए या इनके किसी शिकारी ने वो आर्म को पकड़ लिया, तो उस कंडीशन में दे डिटैच देयर आर्म, वो अपनी आर्म को छोड़ देते हैं। वो अपनी आर्म को छोड़ देते हैं। आर्म का छोड़ देना इट इज नॉन एज ऑटोटॉमी, खुद से ही छोड़ देना, दिस इज नॉन एज ऑटोटॉमी। फिर क्या हुआ? आर्म छोड़ दिया, वो आर्म हट गई वहां से, तो वो आर्म वापस से रीजेनरेट करना शुरू कर देती है। इट मीन्स रीजेनरेशन पावर इज फाउंड इन मेंबर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। सो दे ब्रेक ऑफ आर्म्स फॉर डिफेंस पर्पस, कभी जरूरत पड़ी आर्म छोड़ दिया, एंड दिस आर्म विल रीजेनरेट। एविसेरेशन, कुछ ऐसे भी इकाइनोडर्म्स होते हैं एंगर के टाइम पर, उनको कभी खतरा हो, एंगर हो, या फिर वो खुद डर जाएं, तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं? अपने विसरल ऑर्गन को वॉमिट आउट करते हैं, बाहर निकाल देते हैं अपने विसरल ऑर्गन्स को। किस लिए? जिससे कि दूसरा उनका जो एनिमी है वो डर जाए। देखिए किस तरह से बाहर निकाल देते हैं कि उन्होंने विसरल ऑर्गन को ही बाहर निकाल दिया और उसको देखकर जो उन पर अटैक करने वाला था वो खुद से ही डर जाता है। दिस इज नॉन एज व्हाट? एविसेरेशन। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? एविसेरेशन। ऐसा किसमें मिल रहा है? एग्जाम्पल है होलोथूरिया। एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज एस्टेरियास। एस्टेरियास कॉमन नेम क्या होगा? स्टार फिश, सभी जानते हैं स्टार फिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इकाइनस, कॉमन नेम सी अर्चिन, सी अर्चिन। इट इज ऑल्सो नोन एज एरिस्टोटल्स लैंटर्न। इसी को और क्या बोला जाता है? एरिस्टोटल्स लैंटर्न। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एंटीडॉन, सी लिली। ये कैसा दिखता है? फ्लावर लाइक कुछ, एंटीडॉन सी लिली। नेक्स्ट इज ऑफ्यूरा, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार। याद कीजिए इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का होगा? कंप्लीट या इनकम्प्लीट?
तो इनकम्प्लीट टाइप का, क्योंकि क्या नहीं प्रेजेंट है, एनएस प्रेजेंट नहीं है। अदरवाइज फाइलम इकाइनोडर्मिटा में इट इज कंप्लीट टाइप। नेक्स्ट एग्जांपल इज सी कुकुम्बर, ऑल्सो कॉल्ड कुकुमेरिया। कुकुमेरिया, होलोथूरिया उसको भी कहा जाता है सी कुकुम्बर। नाउ कम टू द रिवीजन। इकाइनोडर्म्स, वाई कॉल्ड इकाइनोडर्म्स, ऐसा उनको क्यों बोलते हैं, ये नाम उनको क्यों दिया गया? बिकॉज दे आर हैविंग एंडोस्केलेटन। कैसा एंडोस्केलेटन है? कैल्केरियस एंडोस्केलेटन एंड स्पाइनी स्किन। स्पाइनी स्किन प्रेजेंट है, तो याद कीजिए इकाइनो स्पाइनी, डर्मेटोज स्किन, तो इस वजह से इनको क्या नाम दिया गया है? स्पाइनी स्किन। हैबिटेट, हैबिटेट की बात करें, दे आर फाउंड इन मैरीन वाटर, और वहां पर भी कहां प्रेजेंट है वो? डीप इन द सी, बॉटम में, बॉटम में प्रेजेंट होते हैं ये। बॉडी शेप तो डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, स्टार शेप है, सिलिंड्रिकल है, वाटरमेलन लाइक हो सकता है, फ्लावर लाइक हो सकता है। सिमेट्री, सिमेट्री का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोलिए कैसी सिमेट्री होगी? आंसर होगा सिमेट्री इन इकाइनोडर्मेटा इज रेडियल। आप रेडियल बोलोगे। जब आपसे पूछा जाए कि इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में कौन सी सिमेट्री होती है, आप तभी बताओगे बाइलेटरल। अगर आपका केवल क्वेश्चन इतना है कि इकाइनोडर्मेटा में सिमेट्री कौन सी होती है, देयर आंसर विल बी रेडियल सिमेट्री। जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम, ट्रू सीलोम, ट्रू सीलोम में भी एक टाइप होता है एंटीरोसीलोम, तो कौन सी प्रेजेंट है यहां पर? ट्रू सीलोम, और उसमें भी टाइप तो एंटीरोसीलोम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। एक और भी नाम बताया था, एम्बुलैक्रल सिस्टम। तो फंक्शन ही बता दो उसके, फंक्शन क्या क्या होते थे उसके फंक्शन? एक तो था कैप्चर ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एंड ऑल्सो लोकोमोशन। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज ओपन टाइप, बट हार्ट प्रेजेंट है क्या? नो, हार्ट इज एब्सेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम का पॉइंट मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इट इज एब्सेंट। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, एक्सक्रीटरी मैटर है, दैट इज अमोनिया, इट डिफ्यूजेस आउट थ्रू बॉडी सरफेस। नर्वस सिस्टम इट इज सिंपल, कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व्स, हर आर्म में प्रेजेंट थी। रिप्रोडक्शन इट इज सेक्सुअल टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सेस आर सेपरेट। बोलिए एक और टर्म हम यूज कर सकते थे यहां पर, क्या बोल सकते थे? यूनिसेक्सुअल है, और क्या बोल सकते हैं? डायोसियस है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन विल बी व्हाट? एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लार्वा प्रेजेंट होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा है, तो डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद हैविंग फ्री स्विमिंग लार्वा। ऑटोटॉमी करते हैं, मीन्स डेंजर के टाइम पर वो अपनी आर्म को डिटैच कर सकते हैं, दिस इज नोन एज ऑटोटॉमी, एंड बाय रीजनरेशन ये आर्म जो है इट विल ग्रो। एविशरेशन, कुछ इकाइनोडर्म्स क्या करते हैं डेंजर के टाइम पर या खतरे के समय, फ्राइटेंड, वो अपने विसरल ऑर्गन को बाहर निकाल देते हैं, वापस फिर अंदर रख लेते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट? एविशरेशन। एग्जाम्पल्स की बात करें, आप बताइए एस्टेरियास का दूसरा नाम क्या होगा? एस्टेरियास का स्टारफिश। और बताइए सी कुकुम्बर का दूसरा नाम क्या होगा? कुकुमेरिया। एंटीडोन
सी लिली, इकाइनस सी अर्चिन, है ना। ये क्या एग्जाम्पल थे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। नाउ कम टू द बिगिनर बॉक्स नंबर 9। फर्स्ट क्वेश्चन, मेंबर ऑफ इकाइनोडर्म हैज अ स्पेसिफिक सिस्टम विच इज नॉट फाउंड इन अदर फाइलम, जो दूसरे फाइलम में नहीं है, दूसरे फाइलम में नहीं है। कैनाल सिस्टम, ये यहां नहीं होता इकाइनोडर्मेटा में। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये कहां प्रेजेंट है, इकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट है, बट और किसी फाइलम में नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा हर जगह, और भी जगह होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बोथ सीलेंट्रेट एंड इकाइनोडर्म इन एडल्ट स्टेज। सीलेंट्रेट में भी होना चाहिए, इकाइनोडर्म में भी होना चाहिए। सीलेंट्रॉन, ये इकाइनोडर्म में नहीं होगी। रेडियल सिमेट्री किसमें होती है, सीलेंट्रेट में भी होगी और इकाइनोडर्म में भी होगी। ट्यूबफिट इकाइनोडर्म में है बट सीलेंट्रेट में नहीं है। बाइलेटरल सिमेट्री नहीं है एडल्ट में। वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसमें मिलेगा, हाइड्रा में नो, लीच में नो, फिश में नो, स्टारफिश में। एंटीडॉन, एंटीडॉन का नाम, दूसरा नाम आपको बताना है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, सी लिली। इकाइनोडर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सक्लूसिवली मेराइन हैबिटेट एंड कैल्केरियस एंडोस्केलेटन, सही बात है। प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम एंड ट्यूब फीट फॉर लोकोमोशन, ये पॉइंट भी राइट है। बाइलेटरल सिमेट्री इन लार्वल स्टेज एंड रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट स्टेज, ये पॉइंट भी राइट है। इट मीन्स ऑल ऑफ द above. इकाइनोडर्म्स रिजेंबल कॉर्डेट, किस बात में इकाइनोडर्म्स रिजेंबल करते हैं कॉर्डेट से। सिमिलर एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर, बड़ा ध्यान से आपको समझना है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, ओरिजिन सिमिलर है, ओरिजिन मेसोडर्मल है, स्ट्रक्चर हमारे में क्या है, बोन्स है। कॉर्डेट में क्या हो सकती है, बोन्स, कार्टिलेज। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, डर्मल ऑसिकल। तो ये पॉइंट सही नहीं है। एंटीरोसीलस मेथड ऑफ सीलोम फॉर्मेशन, जो सीलोम होती है वो कैसी है, एंटीरोसील, वो इकाइनोडर्मेटा में भी है और वो कॉर्डेटा में भी है। एंड आंसर विल बी सेकेंड। रेडियल सिमेट्री कॉर्डेटा में नहीं है। सिमिलर लार्वल स्टेज, ऐसा भी कुछ नहीं है। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स में अकर इन, किसमें होंगे, चीनोफोरा में, इसमें होंगे, सीलेंट्रेटा में होंगे, इकाइनोडर्मेटा में होंगे। इट मीन्स ऑल ऑफ द एबव। Which of the following groups of animal is found exclusively in marine habitat? Exclusively का मतलब होता है only in marine habitat, only in sea water. Fish ऐसा नहीं है, दोनों जगह होती हैं। इकाइनोडर्म्स हाँ, प्रोटोजोआ वो भी फ्रेश वाटर मेराइन दोनों में होते हैं, ये नहीं होगा। पोरीफेरा में आप याद कीजिए, फ्यू स्पॉन्जेस आर फाउंड इन फ्रेश वाटर लाइक स्पॉन्जिला। तो इकाइनोडर्म्स दे ओनली इन marine water. Which is the characteristic feature of Echinodermata? Smooth skin, ये इसी पॉइंट से गलत हो गया, आप याद कीजिए क्या था, स्पाइनी। स्पाइनी स्किन एंड रेडियल सिमेट्री, हाँ ये सही बात है। स्पाइनी स्किन एंड बाइलेटरल सिमेट्री नहीं, ये गलत है। कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। ये स्मूथ स्किन, इस वजह से गलत हो गया। सो आंसर विल बी सेकेंड। एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन एंड एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल बिलोंग टू द फाइलम। मोलस्का, मोलस्का में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, इस वजह से ये मोलस्का के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ। आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। एनिलिडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। So the answer will be what? The answer will be Echinodermata.